Hello students, I Soham Chaudhary, Lecture Civil Department, Praveen Patel College of Diploma Engineering and Technology. We'll continue with moment distribution method, which we have already studied in the last part. So we have already completed two problems and we'll move to the next one. Over here, the support condition will change a bit from the last two problems. The beam which is given to you is find the moment A, B and C for a continuous beam as shown in the figure by using moment distribution method. So the first step is that you will be considering span AB and span BC as a different beam and a fixed beam. So on span AB there is an UDL of 30 kilonewton meter per meter. So the fixed end moment, that is MAB, will be minus WL square by 12, and for MBA it will be plus WL square by 12. Similarly for MBC it will be minus WL by 8, and for CB it will be plus WL by 8. So you will get the value as minus 90 plus 90 and minus 40 plus 40. So these are the values for fixed end moments. Next you need to calculate stiffness factors. From B, if I am looking at A, I know the support A is a fixed support. So over here the stiffness factor will be 4 EI by L, and if I am looking at C from B, it is in free support, this is 3 EI by L. So KBA is 4 EI by L and KBC is 3 EI by L. So you get values as 0.67 EI and 0.75 EI respectively. If you add both this value, that you will be getting 1.42 EI as your total stiffness factor. So for distribution factor, we know it is the ratio of stiffness factor of that particular beam to the total stiffness factor of all the beams meeting at the joint. So this becomes 0.67 EI divided by 1.42 EI. EI gets cancelled and you get DFBA as 0.47 and DFBC is 0.53. Now over here joint are AB and C. Members are AB, BC, AB, BA, BC and CB. The distribution factors are 0.47 and 0.53. The only change from the last numerical is that support A is a fixed support. So we know that fixed support has a moment over there. Fixed support can easily carry the moment. So you just need to release the moment at support C because it is a free support. So 40 is, if you need to make it as a 0, so you would release at C, that is minus 40, and you will carry over half of the moment to the nearest fixed support, that is minus 40 divided by 2, which is minus 20. So this becomes minus 40 minus 20 will become minus 60, 90 will come directly as 90, and minus 90 is minus 90. It remains same. So now again you need to calculate net moment at B. 90 minus 60 will give you 30, but again 30 is positive. So when you multiply that 30 with 0.47 and 0.53, you will get certain values, but you need to change the sign. So it becomes minus 14.1 and minus 15.9. Now again that's 14.1 is carried over to the nearest fixed support, that is 14.1 divided by 2, which gives you 7.05. So 90 minus 14.1 gives you 75.9, minus 60 minus 15.9 gives you minus 75.9, and at support A you get minus 97.05. So again I know I have two different moments, MA is minus 97.05, MB is 75.9 negative, and MC is 0. Moving ahead to the next sum. Solve example 13 in chapter 4 by using moment distribution method, which is nothing but this beam. Span AB is of 6 meters, BC is of 8 meters, and CD is an overhang. Now over here you need to consider the beam. Firstly you need to find the fixed end moments. AB is carrying an UDL, so it becomes plus minus WL square by 12. On span BC the load is eccentric, so it becomes MBC is equal to minus W AB square by L square, and MCB becomes plus W A square B by L square. And
again at C it will be minus 4 into 2, that is minus 8 kilonewton meter, and M DC becomes 0. Next, I can say that over here I have two different joints, that is joint B and joint C, because from B I can move to A and C, and from C I can move to B and D. So here I am having two different joints. So I need to calculate stiffness factors for all these joints. So if I am standing at B and looking at A, I know that the support A is free support, hence the stiffness factor will be 3 EI by L. If I am standing at B and looking at C, then the support is again a free support, so it will again be 3 EI by L. Then I'll move to the next support, that next joint, that is C. If I am standing at C and looking at B, then I'll say that this support is a fixed support, because B is an intermediate support, so it will behave as a fixed support. Again, we have also studied in chapter number 4 that if you are having span A, B and C, at B support you will have some movement acting over it, so B behaves as a fixed support. So now if I am standing at C and looking at B, it is fixed support, so the stiffness factor will be 4 EI by L. And if I am standing at C and looking at D, the stiffness factor will be 0, because वहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है. तो यहाँ से आपको 3 स्टिफनेस फैक्टर्स मिलते हैं. जॉइंट बी के लिए आप बी ए और बी सी को ऐड करोगे तो वो 1 होना चाहिए. जॉइंट सी के लिए आप सी बी और सी डी को ऐड करोगे तो वो 1 होना चाहिए. अब सी डी आपके पास कुछ है नहीं तो 0 है, और सी बी जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज़ 0.5 EI आपका स्टिफनेस फैक्टर है, और 1 मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में बता रहा हूँ. तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज़, अगर आपको बी ए के लिए कैलकुलेट करना है तो बी ए डिवाइडेड बाई टोटल स्टिफनेस एट बी. बी सी कैलकुलेट करना है तो भी सिमिलरली बी सी टोटल स्टिफनेस एट बी. सी बी कैलकुलेट करोगे तो सी बी डिवाइडेड बाई टोटल स्टिफनेस एट सी, एंड सी डी इज़ 0. तो फिर से हमने ये टेबल बना लिया. अब इसमें एक जॉइंट बढ़ गया, ए बी सी एंड डी, तो मेंबर्स हो जाएगा आपका ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, सी डी एंड डी सी. अब आपको पता है कि डी पे तो आपका जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है वो भी 0 है, सी डी पे -8 है, और ए बी पे -6, बी ए पे +6, बी सी -11.72 एंड सी बी इज़ 7.03. अगर आप चेक करोगे तो सी पे अभी आपके पास नेट मोमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो -7.03 सॉरी +7.03 -8 गिव्स यू -0.97. तो वो जो नेट मोमेंट है वो मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ और साइन चेंज करता हूँ. तो जब -0.97 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और साइन चेंज करूँगा तो इट बिकम्स +0.97. अब जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा. तो अब यहाँ पे 7.03 और 0.97 ऐड करूँगा तो 8 हो जाएगा, और ये -8 एज इट इज़ आ जाएगा. तो सी पे मेरा मूवमेंट 0 हो गया, बट मुझे कैरी ओवर फैक्टर क्या बोलता है, 0.97 को नियरेस्ट एंड पे कैरी कर, नियरेस्ट फिक्स सपोर्ट पे भेजना पड़ेगा हाफ उसका. तो 0.97 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स यू 0.485. तो -11.72 प्लस 0.485 नेगेटिव मिल जाएगा आपको -11.235. सिमिलरली ए भी आपका फ्री था तो आपने ए पे भी रिलीज़ कर दिया, तो +6 का हाफ यहाँ पे चले गया, +3 और ये 6 और ये 3 9 हो जाएगा, और ए पे 0 हो जाएगा. अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं बी पे नेट मोमेंट कैलकुलेट करूँगा. तो 9 - 11.235 आपको मिल जाएगा, नेगेटिव में -2.235. अब ये -2.235 को मैं 0.57 और 43 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो और नेगेटिव है इसलिए मेरा वैल्यूज़ जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, दैट इज़ 1.27 एंड 0.96. तो ये 10.27 और 10.27 एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू आपको मिल जाएगा. तो अगेन बी पे भी आपका 0 हो गया. तो जब आपको मोमेंट एट बी कोई पूछेगा तो आप बोल सकते हो -10.27 किलो न्यूटन मीटर, सी पे -8 किलो न्यूटन मीटर. सिमिलरली
लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा कि आपका जो ए सपोर्ट था वो फ्री सपोर्ट था। अब इसमें हमने क्या किया है, ए को भी फिक्स कंसिडर कर लिया है। अगेन आपके पास ए भी आपका फिक्स एंड मोमेंट के लिए प्लस माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, बी सी लोड सेंटर पे है इसलिए प्लस माइनस डब्ल्यू एल बाई 8, और सी पे जो मोमेंट आएगा वो 30 इंटू 2 मतलब -30 इंटू 2 विच इज़ -60। तो यहाँ से आपने सबके फिक्स्ड एंड कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपको स्टिफनेस फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। तो बी से ए अगर आप देखोगे तो इट इज़ फिक्स्ड, सो इट बिकम्स 4 EI बाई एल। बी से सी देखोगे तो इट इज़ फ्री, तो इट बिकम्स 3 EI बाई एल। अगेन जब आप सी से बी की तरफ देखोगे तो इट इज़ फिक्स्ड 4 EI बाई एल, और सी से डी देखोगे तो वो कुछ भी नहीं है सपोर्ट, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबके लिए कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करोगे। जिस भी बीम के लिए कैलकुलेट करना है उस बीम का स्टिफनेस डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस ऑफ दैट बीम बिटिंग एट अ जॉइंट। तो यहाँ से आपके पास DFBA 0.57 आ जाएगा और DFBC 0.43 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 मिलेगा। अगेन DFBC आपके पास 1 आ गया और DFCD 0 है, 1 + 0 इज़ अगेन 1। नाउ आई नो कि ए सपोर्ट फिक्स है, तो ए सपोर्ट पे तो मूवमेंट रिलीज़ होगा नहीं, मेरे को सिर्फ सी पे रिलीज़ करना है। +30 -60 गिव्स यू -30। अगर आप वही -30 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका साइन चेंज होने के बाद वो 30 हो जाएगा, और 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 30 30 60 हो गया, और ये -60 एज इट इज़ आ गया। तो सी पे आपको -60 + 60 0 हो जाएगा। अब ये जो +30 था उसको नेक्स्ट नियरेस्ट सपोर्ट पे कैरी ओवर किया, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 15, -30 + 15 गिव्स यू -15, और ये 60 एज इट इज़ नीचे आ गया। 60 - 15 अगर आपको नेट मूवमेंट चाहिए तो +45 आएगा। +45 को आप 0.57 और 0.43 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू नेगेटिव में मिलेगा, विच इज़ -25.65 -19.35। अब ये 25.65 को नियरेस्ट सपोर्ट पे वापस से भेजना पड़ेगा आगे, डिवाइड बाई 2, तो दिस बिकम्स 12.825। नाउ +60 - 25.65 गिव्स यू 34.35, -15 - 19.35 गिव्स यू -34.35, तो ये भी 0 हो गया। और ए पे आपको -72.825 मिल जाएगा। सो दिस इज़ द वे यू नीड टू कैरी ओवर द मूवमेंट्स टू द नियरेस्ट फिक्स सपोर्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व बाय यूजिंग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों सपोर्ट्स आपको फिक्स दे दिया है, फिर भी ठीक है। सबसे पहले ए बी को कंसीडर कर लिया फिक्स बीम, तो +-WL² 12 से उसका आपको फिक्स एंड मोमेंट मिल जाएगा। फिर बी सी को कंसीडर कर लिया फिक्स्ड बीम, तो +-WL/8 से आपको उसका फिक्स एंड मोमेंट मिल जाएगा, जो कि -41.67 +41.67 ए बी के लिए है, बी सी के लिए -62.5 एंड +62.5 है। अब अगर मैं बी से ए की तरफ देखता तो भी फिक्स सपोर्ट है, बी से सी की तरफ देखता तो भी फिक्स सपोर्ट है। फिक्स के लिए मुझे पता है जो स्टिफनेस वैल्यू है, स्टिफनेस फैक्टर का वैल्यू है, दैट इज़ 4 EI बाई एल। तो 4 EI बाई एल अगर आप पुट करोगे तो आपको 0.8 एंड 0.8 मिल जाएगा दोनों के लिए स्टिफनेस फैक्टर। नाउ दिस इज़ द टोटल इज़ 1.6, 0.8 डिवाइडेड बाई 1.6 करूँगा तो 0.5 मिल जाएगा। अगेन 0.8 डिवाइडेड बाई 1.6 के तो 0.5 मिल गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर BA एंड BC इज़ 0.5। नेक्स्ट आपको टेबल बनाना है, अपने जॉइंट्स मेंबर्स लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख के FEM जो आपने कैलकुलेट किया था दैट इज़ योर फिक्स्ड मूवमेंट्स वो आपने लिख दिया। नाउ वी नो कि बोथ द सपोर्ट्स आर फिक्स सपोर्ट, तो ऑब्वियसली फिक्स सपोर्ट्स पे मूवमेंट होता है, तो हमको यहाँ पे रिलीज़ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो B है वहाँ पे हम नेट मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 41.67 - 62.5, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो वही नेगेटिव वैल्यू को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, और उसका साइन चेंज कर दोगे तो वैल्यू मिल जाएगा आपको 10.415 दोनों जगह के लिए, दैट इज़ एट BA एंड BC। अब फिक्स्ड है तो आपको कैरी तो करना ही पड़ेगा, तो 10.415 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 5.21 दोनों सपोर्ट्स पे चले गया, दैट इज़ एट A एंड C। ए पे -41.67 + 5.21 गिव्स यू 36.46, दैट इज़ योर मूवमेंट एट A। सी पे 62.5 + 5.21 दैट इज़ 67.71,
और बी पे आपका जो मूवमेंट है वो -52.1 एंड +52.1, तो वो 0 हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो ये जो प्रॉब्लम है इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है, इट इज़ सिमिलर टू द प्रॉब्लम्स विच वी आर डूइंग ओवर हियर, बट इसमें अगर आप क्वेश्चन में नोट करोगे तो ए बी स्पैन के वहाँ पे सर्कल में 2i लिखा हुआ है और बी सी के वहाँ पे आपको i मिला हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग फॉर दिस थिंग? तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि इसका जो स्पैन बी सी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो i है और स्पैन ए बी का जो है वो 2i है। तो प्रोसेस आपका सिमिलर रहेगा, लेकिन जब आप स्टिफनेस फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो नाउ लुक, इफ़ आई एम एट बी, चलो सबसे पहले हम फिक्स्ड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट लोड सेंटर पे एक्ट कर रहा है तो ±WL/8 हो जाएगा ए बी के लिए, बी सी के लिए UDL है तो ±WL²/12 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे फिक्स्ड एंड मोमेंट्स मिल जाएंगे। नाउ अगर मैं बी पे हूँ और ए की तरफ देखता हूँ तो ये फ्री सपोर्ट है, तो स्टिफनेस फैक्टर इज़ 3EI/L। बी से सी की तरफ भी देखता हूँ तो भी ये फिक्स सपोर्ट है 3EI/L। तो यहाँ पे जो 3E और I है, I के जगह पे आप 2i सब्स्टिट्यूट करोगे ए बी के लिए और बी सी के लिए आप i सब्स्टिट्यूट करोगे, तो उसके बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट विल बी योर स्टिफनेस फैक्टर। उसके बाद आप जॉइंट पे जितना भी वैल्यू आ रहा है उन दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल स्टिफनेस एट बी मिल जाएगा। सेम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए ए बी डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस, तो आपको ए बी के लिए या बी ए के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिलेगा, बी सी के लिए बी सी डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस, तो आपको बी सी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल जाएगा विच इज़ 0.57 एंड 0.43 रिस्पेक्टिवली। टेबल फॉर्म किया हमने, अभी टेबल तो वैसे ही बनेगा जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। आपका ए सपोर्ट और सी सपोर्ट फ्री है तो आपको ए पे भी रिलीज़ करना पड़ेगा और सी पे भी रिलीज़ करना पड़ेगा। तो रिलीज़ करने के बाद हाफ ऑफ द मूवमेंट्स आर कैरिड ओवर एट बी, तो वहाँ पे हमने कैरी ओवर किया तो आपको बी पे कुछ वैल्यूज़ मिलते हैं। अब बी पे आप नेट मोमेंट कैलकुलेट करोगे, अगर वो पॉजिटिव है तो आप उसको नेगेटिव कंसीडर करोगे, नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव साइन चेंज करोगे और उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे। तो 112.5 - 35.62 गिव्स यू 76.87, -50 - 26.87 गिव्स यू -76.875। तो यहाँ पे भी 0 हो गया, तो अल्टीमेटली मुझे मूवमेंट को 0 करना है। तो दिस इज़ द वे द मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज़ मेड। Thank you students, I hope you have understood all the things. Even though if you have any doubt you can write me at prpsohamcea@gmail.com.